تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جس کے ذریعے تمام اہل انس و جن کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ معزز حاضرین شامعین، یہاں پر موجود علماء کرام اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، سننے والی تمام دینی ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے بدعت کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ کی توفیق سے، کہ بدعت کتنا کبیر گناہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بدعت کی تعریف بتا دوں۔ لغت اعتبار سے بدعت کا لفظ بدعت سے ماخوذ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 17، سورہ انعام آیت نمبر 101۔ وہی آسمانوں اور زمین کا ابتدا پیدا کرنے والا ہے، یعنی بغیر سابقہ مثال کے زمین اور آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور لوگ اسے نیکی کے اصول کا ذریعہ سمجھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم موجود ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسا کام ایجاد کرے جو دین میں سے نہیں، وہ کام مردود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبوں میں پڑھا کرتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، یعنی قرآن مجید، اور راستوں میں سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور سب سے بری چیز دین کے اندر نئی باتوں کا پیدا کرنا ہے، اور ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کچھ لوگوں نے بدعت کو دو قسموں میں بانٹا ہے، بدعت سیئہ و بدعت حسنہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعت گمراہی ہے، لہذا بدعت میں شروع ہو ہی نہیں سکتا۔ آج مسلمانوں کے اندر دین کے نام پر نئی نئی بدعتیں رائج ہے، جنہیں دین اور قاری ثواب سمجھ کر لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، جو انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ اس لیے ہر قسم کی بدعت کو مٹانے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل کرنے یا اضافہ کرنے یا کمی کرنے کا کوئی بھی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورہ حجرات پارہ 26 آیت نمبر 1۔ ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ دوسرے دامن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان موجود ہے اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدوا علیہ، جب میں تمہیں شریعت کی کوئی بات بتا دوں اس میں اپنی جانب سے ہرگز کوئی اضافہ نہ کرو، ہرگز کوئی اضافہ نہ کرو، کوئی اضافہ نہ کرو۔ قرآن کی صحیح حدیث سے معلوم ہے، اس حدیث سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون عطا کیا ہے اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل کرنے یا اضافہ کرنے یا کمی کرنے کا کوئی بھی حق نہیں۔ بدعت کو پہچاننے کے لیے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات جو نصیح رکھے، ہر قول و فعل جو عقیدہ سنت کے معارض و مخالف ہو، ہر وہ کام جو تقرب اللہ کے لیے کیا جائے حالانکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہو، ہر وہ عقیدہ جس کی صریح دلیل موجود نہ ہو، ہر وہ عبادت جس کی کیفیت کسی جیب میں موجود آیت میں پائی جاتی ہو، ہر وہ عبادت جسی شریعت نے متعلق رکھا ہو مگر لوگوں نے اس پر قیود مثلا جمع یا مکان عدد کا اضافہ کر دیا ہو، عبادت میں گلوس کاملہ وغیرہ۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کے لیے 6 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا سبب، دوسرا جنس، تیسرا قدر، چوتھا کیفیت، پانچواں زمان، چھٹواں مکان۔ پہلا سبب، مثلا کوئی شخص ایسی عبادت کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، جیسے نماز مشروع۔ اگر کوئی شخص ہر بار گھر میں داخل ہوتے وقت 2 رکعت نماز ادا کرے تو یہ بدعت ہے۔ دوسرا جنس، اگر کوئی گھوڑے کی قربانی کرے تو جائز نہیں، اس لیے قربانی کے جانور متعین ہے، ہاں قربانی کے دنوں کے علاوہ اسے کاٹ کر کوئی کھا سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے۔ تیسرا قدر، اگر عبادت شریعت کے مقرر معیار سے جائز یا کم ہو تو بھی مردود ہے، جیسا کہ وضو کے اعضاء کو 4 بار دھونا، جوہر کے فرض کو 3 رکعت پڑھنا، یہ بدعت ہے، جبکہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ چوتھا کیفیت، عبادت کا طریقہ مشروع ہونا چاہیے، اگر کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ پانچواں زمان، عبادت کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عبادت شریعت کے مقررہ وقت کے اندر
اندر کی جائے. اگر کسی نے بقرہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کیا تو اس کا وہ عمل مردود ہے، اس لیے کہ زمان کی قید نہیں پائی گئی. چھٹواں مکان، اس لیے کہ زمان کی قید مفقود ہے. چھٹواں مکان، اگر کسی نے مسجد کے علاوہ کسی مدرسے میں اعتکاف کیا تو باطل ہے، اس لیے کہ زمان کی قید نہیں پائی گئی. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب ہمیں اس دین پر عمل کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کمی بیشی اللہ کو قبول نہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان قرآن مجید کی سورہ مائدہ نمبر 3 میں موجود ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. سامعین اکرام، کیا آپ نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا؟ کسی بدعت نے مسلمانوں کے اندر سے جہاد کے رخ کو ختم کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ اپنے آپ کو جہاد بنا سے خالی رکھو. یہی بدعت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو یہ کہہ کر مختل کر دیا کہ دوسروں کے عیوب پر نظر دوڑانے سے پہلے اپنے عیوب پر نظر رکھو وغیرہ. بدعت کے ظہور میں بہت سارے اسباب ہیں جن کا چند تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلا، خواہشات نفس کی پیروی. دوسرا، دین کام و مسائل کی نوافقیت. تیسرا، کفار مشرکین کی مشابہت. چوتھا، تعصب اختیار کرنا وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت مسلمہ سروں کی بدعت کی لعنت سے پاک فرمایا. آمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ، یہ ننھا خطیب عبداللطیف محمدی، یہ ہمارے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور شروع میں تلاوت قرآن کے بعد درس حدیث جو دیا تھا وہ ہمارے سب سے بڑے صاحبزادے، جنہیں ابھی 17 جنوری کو لکھنؤ میں بارہ بنکی میں وہ مدرسے میں پڑھا رہے تھے. لکھنؤ میں سسرال ہے ان کا، گزر ہوا اور آگے کچھ فساد ہو گیا تھا، اس کی چپیٹ میں آگے گزرے لوگوں نے ان کو بھی پکڑ کے تلوار اور چاپڑ سے زخمی کر دیا تھا. ہاتھ وغیرہ کٹ گیا تھا، تھوڑا سا بچا، آپریشن ہوا، ابھی بھی زیر علاج چل رہے ہیں، کندھے پہ تلوار لگی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جان بچا لی. دوستو، یہ ننھا خطیب عبداللطیف محمدی. اور اب اس کے بعد ہم اپنے اس دوسرے مہمان کو، جو کہ اسلامک کال اینڈ گائیڈنس فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، اور احمد آباد گجرات سے چل کر آئے ہیں، جن کی ابھی تک آپ نے ویب سائٹ پر انہیں دیکھا یا سنا ہوگا، یا یوٹیوب پہ انہیں دیکھا سنا ہوگا. ابھی الحمدللہ آپ کے بیچ پہلی بار مرزا پور کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، اور آپ کی ڈی وی ڈی بھی انشاءاللہ کچھ لوگوں میں گفٹ کی جائے گی. ہم یہ جو پروگرام چل رہا ہے یہ ہم سبھی کے لیے ہے، لیکن خصوصی طور سے وشیش روپ سے ہمارے جو دوسرے دھرم کے فالوورز آئیں ان کے لیے ہے، اور سوال کی کھلی چھوٹ آپ کے لیے بھی ہے، اور جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہے. چونکہ ہندو بھائی کو تو ہم گفٹ دیں گے انشاءاللہ، مسلم بھائی بات ان کی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، بات وہ کچھ سن رہے ہیں یا کہ اونگھ رہے ہیں، تھوڑا اس بات کی پہچان بھی ہو جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی، اور کچھ بات ان تک بھی پہنچ جائے گی. اس لیے ہم نے کچھ گفٹ مسلم بھائیوں کے لیے بھی رکھا ہے. جو مسلمان بھائی یہاں کے سوال پوچھے گا اس ہر مسلمان بھائی کو ہم ایک گفٹ دیں گے، کچھ کتاب کی شکل میں، کچھ ڈی وی ڈی کی شکل میں، وہ کہیں کا بھی ہو، وہ مرزا پور کا ہو چاہے باہر کا. جو سوال پوچھے گا انشاءاللہ تعالی رحمان، جب سوال جواب کا ٹاپک چلے گا اس وقت. اس لیے آپ تقریر کو غور سے سنیں، اور کوئی چیز اگر آپ کو رہ جاتی ہے کہ اس بیچ کو سمجھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے، یا اس میں کوئی چیز ڈاؤٹ ہے، یا کوئی لگا آپ کو یہ چیز غلط یا ایگزامپل غلط دیا گیا، کوئی دلیل غلط دی گئی معاذ اللہ، تو آپ یہاں آ کر کے دلیل کو، آپ ڈاؤٹ کو جو ہے کلیئر کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور سوال اگر کوئی اٹھتا ہے ذہن میں تو آ کے سوال پوچھیں. اب میں ڈائس پر دعوت سخن دیتا ہوں
अपने छोटे भाई मोइनुद्दीन नसरुल्लाह साहब को। इसके पहले एक जरूरी ऐलान है कि हमारे बाहर से जो कुछ भाई बाद में आए हैं उनके लिए खाना तैयार है, वो जाकर के खाना खा लें बगल में टीन शेड के नीचे, वहां से टोकन ले लें, कूपन लेके जाके खाना खा लें। तो लीजिए अब आपके बीच अहमदाबाद गुजरात ICGF के प्रेसिडेंट जनाब मोइनुद्दीन नसरुल्लाह साहब एक मुदल्लल, एक ठोस, एक बेबाक दलील बड़े ही संजीदा अंदाज में और मैं हवाले और दलाइल के साथ उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के अंदर पूरे यूपी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार मोइनुद्दीन नसरुल्लाह। मैंने तीसरा सवाल आपसे किया था कि आप लोगों में से कितने लोग मरवा अल शर्बीनी को जानते हैं, और आई एम श्योर कि बहुत कम लोग जानते होंगे, और आप लोगों में से किसी ने फिंगर रेज नहीं किया। मरवा अल शर्बीनी 31 साल की खातून जो जर्मनी में रहती थी, इजिप्ट की रहने वाली थी, मिस्र की रहने वाली थी, लेकिन जर्मनी में आ गई थी। वो एक फार्मासिस्ट थी, पढ़ी लिखी खातून थी। वो 21 अगस्त 2012 के दिन अपनी बेटी को लेकर एक प्लेग्राउंड में जाती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। वहीं पे एक और शख्स जिसका नाम एलेक्स था, वो अपनी भांजी को लेकर जाता है। वो भी अपनी भांजी को खिलाना चाहता है। और अक्सर हमारे वहां होता भी है, हम देखते भी हैं कि जब एक ही ग्राउंड हो, एक ही चीज खेलने की हो, तो बच्चे आपस में लड़ जाते हैं। यही हाल वहां पे हुआ जर्मनी के अंदर। वो प्लेग्राउंड के अंदर, पब्लिक प्लेग्राउंड में, एलेक्स की भांजी और मरवा अल शर्बीनी की बेटी दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। और जो बड़े समझदार लोग होते हैं वो इन बातों में नहीं पड़ते, लेकिन एलेक्स था, उसने, चूंकि मरवा अल शर्बीनी मुसलमान थी, उसने बाकायदा इस्लामी तौर पे हिजाब भी लिया हुआ था, तो उसने एलेक्स ने मरवा अल शर्बीनी को बहुत गालियां दी कि तुम मुसलमान दहशतगर्द होते हो, तुम मुसलमान ऐसे ही हो, तुम ये वो, और उसने बहुत सारे एब्यूसिव वर्ड्स इस्तेमाल किए। मरवा अल शर्बीनी एक काम करती है, वहीं से पुलिस को टेलीफोन लगाती है और कहती है यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं और आके आप। पुलिस आती है, मामला रफा दफा होता है और एलेक्स के खिलाफ विमेन अब्यूज, वर्बल अब्यूज का केस बनता है और एलेक्स को पेनल्टी लगती है कि तुम्हें इतना पाउंड देना होगा। वो देने से इनकार कर देता है। देने से इनकार कर देने के बाद दूसरी बार फिर केस की सुनवाई होती है, फिर वो देने से इनकार कर देता है और मामला 1 जुलाई 2009 को पहुंचता है, जहां पर फाइनल हियरिंग हो रही थी। मरवा अल शर्बीनी कोर्ट में मौजूद थी, उसका बेटा और उसका हस्बैंड, ये लोग भी वहां पे मौजूद थे, और सामने एलेक्स भी मौजूद था। एलेक्स के वकील, मरवा अल शर्बीनी के वकील भी उस कोर्ट में मौजूद थे और 3 जज वहीं पे थे। होता यह है कि आपस में बहसें होती हैं, मैं वो सारी बातें नहीं बताना चाहता। फिर यह होती है कि कोर्ट की रिसेस हो जाती है और मरवा अल शर्बीनी वो चाहती है कि अब मैं वापस नहीं आना चाहती, मुझे यहाँ पे इंसाफ बहुत देर में मिलेगा, मैं ये केस को रफा दफा करना चाहती हूँ। और वो इसी नियत से कोर्ट के दरवाजे के बाहर आती है। इतने में एलेक्स 18 सेंटीमीटर का, विकिपीडिया की रिपोर्ट है कि 18 सेंटीमीटर का चाकू वो लेकर आता है और मरवा अल शर्बीनी के पेट में 15 घाव करता है। उसके बाद उसके हस्बैंड के ऊपर भी 20 वार करता है। उसका हस्बैंड फौरन कोमा में चला जाता है और मरवा अल शर्बीनी शहीद हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, मुसलमान, ऐसे मुसलमान जिसको लोग कहते हैं कि ये जाहिल लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये औरतों को इज्जत नहीं देते, ये औरतों को पढ़ाते नहीं हैं, उनके बारे में आपने मलाला का बहुत बड़ा हल्ला किया। आप तो बड़े तहजीब वाले हैं, आप तो मगरिबी तहजीब को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, आप तो अपने आप को बड़ा तहजीब वाला मानते हैं, आप तो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं। आपकी कोर्ट के अंदर जहां पे सिक्योरिटी भी मौजूद थी, वहीं पर एक कातिल एक मासूम औरत पे वार करता है और कत्ल कर देता है, पूरा मीडिया खामोश है। कहां है वो यूएन? क्यों मरवा अल शर्बीनी डे नहीं मनाती? ये इनकी हिपोक्रेसी है। ये दोनों वाकयात बताने से मेरा मकसद सिर्फ यही था, एक बात को याद रखिए कि कोई भी मीडिया मुखलिस नहीं होता, मीडिया आपका बॉस बन जाता है। आज मीडिया के जरिए साइकोलॉजिकल ऑपरेशन किया जाता है। आप किससे मोहब्बत करें, आप किससे नफरत करें, ये सारे आपके फैसले कोई नहीं करता,
सिवाय के मीडिया के। आप किसी से बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, किसी से बहुत अच्छी मोहब्बत रखते हैं, किसी के बारे में बहुत अच्छा गुमान रखते हैं, लेकिन अगर उसी शख्स को आपने मीडिया के जरिए दिखा दिया गया, ये शख्स बहुत बुरा है, ये शख्स फला फला आतंकवाद के केस में पकड़ा गया है, आप उससे मिलना बंद कर देंगे। कोई तहकीक की बात नहीं, कोई कोर्ट में फैसले नहीं हुए, कहीं पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लेकिन मीडिया के जरिए जब अगर फैसला सुना दिया गया तो किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि खड़े होकर सवाल कर सके मीडिया को ये किसने हक दिया कि अपने न्यूज चैनल के जरिए वो फैसले सुनाए। यही वो मीडिया है। मुसलमानों के खिलाफ बोलने की बात आती है तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। मेरा सवाल है कि जिस शख्स को पकड़ने के लिए आपने 2001 के बाद अक्टूबर नवंबर के अंदर अफगानिस्तान में आप एंट्री लेते हैं, 2011 के अंदर उसे मार भी लेते हैं आप, इनकी थियरी के मुताबिक वो शख्स मारा भी जा चुका है। 2 साल तक आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? कौन सा मीडिया इनसे सवाल करता है? कौन सा मीडिया इनसे ये सवाल करता है कि 2 साल तक आप अफगानिस्तान में आप क्या कर रहे हैं? आपने जिसे मारने गए थे, आपकी थियरी के मुताबिक जो आपका जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसने गिराया था वो शख्स 2 साल के पहले ही मर चुका है, आपने मारा। आपकी थियरी के मुताबिक अब आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? कौन सा मीडिया आपसे सवाल करता है? कौन सा मीडिया अमेरिका से ये सवाल कर रहा है? कभी नहीं करेगा। क्यों? अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है, आज ये भी लॉग इन कीजिए, आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए हिलेरी क्लिंटन के बारे में। हिलेरी क्लिंटन कुछ सालों पहले व्हाइट हाउस के अंदर आर्ग्यूमेंट करती है और वो ये बात को कहती है कि यूएसएसआर को जब हमने तोड़ा था, मतलब कि अफगानिस्तान के अंदर जब हमने रूस को तोड़वाया था मुसलमानों के जरिए, उस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो पावरफुल वेपन था वो था मीडिया। आज हम चाइना और रशिया के खिलाफ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन वॉर हार रहे हैं, इसलिए हमें बजट ज्यादा दिया जाए जिसके जरिए हम मीडिया को ज्यादा फंडिंग दे सकें। तो ये है मीडिया। हकीकत में मोस्टली गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, और गवर्नमेंट भी कैसी है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट कैसी है ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की गवर्नमेंट कैसी है, किस तरह के हालात पेश आते हैं, उनके पीछे किन लोगों का हाथ होता है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि चंद लोग अपने फायदे के लिए इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, और इन चीजों को कंट्रोल करने के बाद ही समाज के अंदर अशांति फैलाते हैं। दूसरा चैलेंज जो हमारी सोसाइटी के अंदर है वो है गरीबी। गरीबी आज दुनिया के अंदर और हमारे देश के अंदर ही देख लीजिए किस तरह से फैली हुई है। एक इंडिया का मैं नक्शा आपको बताता हूं। मुंबई में एक अकेला शख्स रहता है जिसकी 10 माले की बिल्डिंग है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जिस पे वो उसका चार्टर्ड प्लेन है, वो उनसे उड़कर जाता है। उसी मुंबई शहर के अंदर जो गटर के नाले होते हैं जो बने नहीं रहते, जमीन के अंदर ही डालते, हजारों की तादाद में स्लम एरियाज हैं जहां पे लोग रहते हैं। एक ही सिटी के अंदर इतना बड़ा तजाद क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारा माशी निजाम है, हमारा अर्थतंत्र है कि हमने जो हकीकत में इंसाफ की बुनियाद पर जो माशी निजाम होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम हमारा होना चाहिए, वो नहीं है, जिसकी बुनियाद पर आज समाज के अंदर गरीबी बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी बला जो है वो ये है सूदी निजाम। सूदी निजाम वो एक ऐसा निजाम है जिसके जरिए दुनिया की पूरी दौलत चंद लोगों के हाथों में आ जाती है, और इसकी वजह से वो चंद लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। आज दुनिया का 90% माल जो है, अप्रोक्सीमेटली 90% जो माल है वो 10 लोग उसके ऊपर कब्जा रखे हुए हैं, और दुनिया का जो 10% माल है उसके अंदर से 90% दुनिया की आबादी उस पर अपना जीवन बसर करती है। मिसाल, इसका मतलब यह हुआ कि अगर दुनिया के अंदर 100 रुपए हैं और 100 लोग हैं तो 10 रुपए के ऊपर 90 लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, और उस 90 रुपए के ऊपर सिर्फ 10 लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। यह दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम है। इस्लाम ने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया, और आप देखेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर भी इसकी इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के जो फाउंडर हैं वो यहूदी हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर भी
ये यहूदियों का बहुत अच्छा हॉल्ट था मदीना के अंदर, जो वो सूद पे पैसे दिया करते थे। कुरान ने ऐसे मौके पर इस इश्यू को डील किया। और आप देखेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, और खिलाफत राशिदा में ये बात को देखा गया कि लोग अपनी ज़कात लेकर जाते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। मतलब कि वो बैलेंस वाला इकोनॉमिक सिस्टम जो इस्लाम ने दिया था उसको फॉलो किया, तो गरीबी पूरी तरह से इस दुनिया से मिट गई। सिंपल सा सॉल्यूशन है, 2.5% जो प्रॉपर्टी आपकी है उसमें 2.5% अगर एक साल आपने उस पर गुजार दिया है तो 2.5% आपको गरीबों को देना है। और आप जो ये गरीबों को दे रहे हैं, ये गरीबों पे एहसान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 20 से आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि गरीबों, मिस्कीनों और मुसाफिरों का, रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों का हक अदा कर दिया करो और फजूल खर्ची से बचो। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। यहां पे कुरान की इस आयत में बताया गया कि आपका माल आपका खुद का नहीं है, आपका माल आपका खुद का नहीं है, इसमें हक गरीबों का, मिस्कीनों का भी है, जो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है इस बात को टेस्ट करने के लिए कि अगर आपको प्रॉपर्टी दे दी जाती है तो गरीबों का हक जो आपके पास है क्या आप उन्हें देते हैं। लेकिन गरीबी फैलती ही तब है जब इंसान ईश्वरीय मार्गदर्शन को छोड़ देता है और वो इस बात को समझने लगता है कि मैंने जो पैसा कमाया है वो मेरा खुद का है, मेरी मेहनत कर कमाया हुआ है, ये ईश्वर का दिया हुआ नहीं है। जब ऐसी सोसाइटी आप कायम करेंगे, ऐसे दहरियों वाली सोसाइटी आप कायम करेंगे जो ईश्वर अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ईमान न रखती हो, तो बेशक भूखमरी का आलम बढ़ता ही जाएगा। मैं आप सभी लोगों से एक सिंपल सवाल पूछता हूं। हम दुनिया की बात छोड़ देते हैं, दुनिया बहुत बड़ी चीज है, मैं हिंदुस्तान की मिसाल लेता हूं। मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, क्या हमारे देश में इतना पैसा नहीं है कि रोजाना कोई इंसान भूखा सोए? बेशक हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास माल है, हमारे पास इतना जर गवर्नमेंट के पास है कि अगर वो कोशिश करें तो कोई भी शख्स रात में भूखा नहीं सो सकता। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं हो रहा है। क्यों? ईश्वरीय मार्गदर्शन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स मुसलमान ही नहीं हो सकता कि खुद भरपेट खाए और उसका पड़ोसी कोई भी हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता कि खुद भरपेट खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। सिर्फ इस कंसेप्ट को आप आजमा लीजिए और इंप्लीमेंट कीजिए इस मिर्जापुर के इसी इलाके में। सारे लोग ये फैसला कर लें कि हम उस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक कि हमारा पड़ोसी खाना ना खा ले। आप मुझे बताइए, मिर्जापुर के अंदर क्या वो सोसाइटी नहीं बन सकती कि रात के अंदर कोई भी शख्स भूखा नहीं सोएगा? हो सकता है कि नहीं है? लेकिन क्या ये हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आज इंसान मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम सेल्फिश बन चुका है। वो सारा का सारा जो माल समझ रहा है वो मेरा खुद का है, ये समझ रहा है। इसलिए ये गरीबी फैल रही है और इसका हल जो है वो इस्लाम ने जो दिया उसे अगर फॉलो किया जाए तो गरीबी इस दुनिया से निकल सकती है। फैज सैयद साहब ने औरतों के हुकूक के बारे में बात की और आज मगरिबी दुनिया पूरी दुनिया को चैलेंज कर रही है, खासकर इस्लाम को चैलेंज कर रही है कि इस्लाम में औरतों के हुकूक नहीं है, इस्लाम में औरतों को इज्जत नहीं है, इस्लाम में पर्दे का निजाम है जो औरतों को डिग्रेड करता है, इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं है। जो हजरात ये एतराज करते हैं उन एतराजात का जवाब तो मैं फिर कभी दूंगा, लेकिन उनकी सोसाइटी का खुद का हाल क्या है मैं वो आपके सामने पेश कर दूं। पहले ये हाल बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई इंसान चोर है, खुद चोरी कर रहा है और जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट कर रहा है कि भाई मेरे घर में चोरी हो गई। खुद चोर है, गैरों के घर में चोरी कर रहा है और पुलिस थाने में रिपोर्ट दे रहा है कि चोरी हो गई, ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए।
एन यही हाल आज मगरिबी तहजीब के ठेकेदारों का है। वो लोग मेरे ख्याल से इंसानी तारीख के अंदर, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, मेरे ख्याल से औरतों को इतना बेवकूफ कभी नहीं बनाया गया था जो आज 21st सेंचुरी के अंदर बनाया जा रहा है। औरतों को बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके जिस्म से कपड़े उतरवा लिए जा रहे हैं, और वहां पे ऐसी तंजीमें हैं औरतों के, जो लोग औरतों को इस बात के लिए मोटिवेट करती हैं कि अगर आप कोई चीज का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पूरे पूरे कपड़े उतार लीजिए। ये वहां की तहजीब है। और ऐसे बदबख्त हमें कहते हैं कि इस्लाम में औरतों के हुकूक नहीं है। आज मैं आपके सामने उन्हीं के न्यूज चैनल की रिपोर्ट, अगर खुद इंसान कबूल कर ले कि मैं चोर हूं तो इस बात को सारे लोग मान लेते हैं कि बेशक इसने अपना जुर्म कबूल किया। मीडिया बिका हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे मिलती हैं जो दिखाने के काबिल होती हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट है जो शाये हुई 23 मार्च 2013 को। ये मेरे पास उसका पर्चा मौजूद है कि एक शख्स जो कुक था वो अपनी बीवी का कत्ल कर देता है और 4 दिन तक उसकी लाश को उबालता है घर में, ताकि सबूत जो उसके खिलाफ होने वाले हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाए। लॉस एंजलिस का यह वाकया है। वो तहजीब जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझती है, वो ये समझती कि हम औरतों को हुकूक देते हैं, उनके घर का ये हाल है। ये तो कुछ भी नहीं। आगे चलिए, बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट है जो शाये हुई 17 अप्रैल 2009 के अंदर। एक बुक शाये हुई थी, उसी के अंदर से ये अखज किया गया है, ये रिपोर्ट्स निकाली गई है, जिसका नाम था, वो बुक का नाम था द लोनली सोल्जर। उसके अंदर यह बात को बताया गया, मोर अमेरिकन वीमेन हैव फॉट एंड डाइड इन इराक देन इन एनी वॉर सिंस वर्ल्ड वॉर 2। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा अमेरिकन औरतें लड़ी हैं और मरी हैं, तो वो इराक के वॉर के अंदर। इराक के वॉर के ऊपर भी अगर मैं बताने चलूं तो सुबह हो जाएगी। इराक के अंदर औरतें जितनी मारी गई हैं, अमेरिकन विमेन 2000 दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसी कभी भी कोई भी जंग में नहीं मारी गई थी। ये एक रिपोर्ट थी। उसके अंदर एक आर्मी स्पेशलिस्ट बताती है, उसका नाम था चांटेले हैनाबेरी। वो ये कहती हैं, इस रिपोर्ट के अंदर ही है, आप गूगल कर लेंगे आपको भी मिल जाएगा, बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट है। वो ये कहती है, आई वॉज लेस स्कैर्ड ऑफ मोर्टार राउंड्स that came in every day then I was of the man who shared my food। मतलब वो ये कहती है कि जहां पे मैं रहती थी इराक के अंदर जहां मैं रहती थी, और जो मोर्टार आते थे, जो बम आते थे मेरे ऊपर, मुझे उनसे कम डर लगता था बनिस्बत उन लोगों के जो लोग मेरे साथ खाना खाते थे। ये अमेरिकन तहजीब है, ये मगरिबी तहजीब है जो ये दावे करते हैं कि हम औरतों को हुकूक देते हैं। आगे सुनिए, एक और आर्मी स्पेशलिस्ट इसी में कहती है, जिसका नाम था मिकेला मोंटोया। वो कहती है कि मैं अपने जेब के अंदर चाकू रखा करती थी। मैं इसलिए चाकू नहीं रखती थी कि कोई दहशतगर्द, इराकी दहशतगर्द आकर मुझे मार डालेगा। मैं इसलिए चाकू रखती थी कि मेरे ही प्लाटून के लोग जो मर्द हजरात हैं वो मेरे पे कहीं भी रेप करेंगे, हमला करेंगे, तो मैं उनसे हिफाजत के लिए अपने पास चाकू रखती थी। तो ये मगरिबी तहजीब का हाल है। ये अफगानिस्तान में गए थे, दुनिया को ये वीडियो दिखाकर कि अफगानी तालिबान, मैं अफगानी तालिबान का सपोर्ट नहीं करता, वल्लाह आलम वो कैसे लोग थे, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इन्होंने क्या वीडियो दिखाई थी कि अफगान के लोग औरतों को मारते हैं, उनको जलील करते हैं, और आज भी वो यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। काफी लोगों ने उस पर सवाल उठाए कि ये सच है या गलत है। ये दुनिया को वीडियो दिखाकर अफगानिस्तान में गए। अफगानिस्तान के अंदर भी क्या हो रहा है वो भी मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन वक्त कम होने की वजह से मैं वो सब नहीं बताना चलूं। बताने का मकसद ये है कि दुनिया को इन्होंने क्या दिखाया कि हम औरतों की हिफाजत के लिए, हमारा बदला लेने के लिए हम ये कंट्रीज को इन्वाइट कर रहे हैं। आज वही कंट्रीज के अंदर अपने ही घर की औरतों को ले जाकर वो क्या कर रहे हैं, आपके सामने मैंने पेश किया। तो फैसला आप करें कि जो शख्स ज्यादा चिल्लाता है, जो शख्स ये कहता है कि चोरी हो गई, डाउट उस पर करने की जरूरत है।
उनके घर का हाल क्या है। आप देखिए आज अमेरिका के अंदर क्या हाल हो चुका है, उनका फैमिली सिस्टम क्या हाल का हो चुका है। वहां पे अगर कोई शख्स किसी बच्चे से किसी के बाप का नाम पूछ ले कि बेटा तुम्हारे बाप का नाम क्या है, व्हाट द हेल, हु यू आर टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले। यानी कि किसी बच्चे के बाप का नाम पूछना गाली हो चुकी है, ये तहजीब वहां की हो चुकी है। और अगर मुझे डर लगता है, अल्लाह ना करे, हम जिस तरह से मगरिबी तहजीब की अगर टेक्नोलॉजीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से मीडिया का असर हमारे घरों में हो रहा है और उनको हम अंधा अनुकरण कर रहे हैं, औरतों की आजादी को उनके कम कपड़े पहना पर या उनके कपड़े उतरवा कर हम समझ रहे हैं, हमारी साइकोलॉजी भी अगर इस तरह बनती जा रही है तो वो दिन दूर नहीं। जिस तरह बिल क्लिंटन जब अपना अलविदाई खिताब कर रहा था अपने प्रेसिडेंटशिप का, तो वो ये कह रहा था कि अनकरीब अमेरिका के अंदर अक्सरियत जो हमारे बच्चों की होगी वो इलेजिटिमेट चाइल्ड की होगी, जिन्हें कहा जाता है कि हरामी का बच्चा, ऐसे बच्चों की होगी। अगर हमें हमारी भारतीय संस्कृति को बचाना है, हमारे अखलाक को बचाना है, हमारे ये मजबूत फैमिली सिस्टम को बचाना है, तो इन तमाम चीजों को पूरी तरह से इग्नोर करना होगा और इनके खिलाफ खड़े होना होगा, तो ही हमारी सोसाइटी बच सकती है। वरना वो दिन दूर नहीं कि हमारे देश के अंदर भी किसी बच्चे का नाम पूछना गाली बन जाएगी। रेप केस होते हैं और हमने देखा दिसंबर के अंदर भी और उससे पहले और रोजाना आप एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़िए, रोजाना हिंदुस्तान के अंदर रेप हो रहे हैं। अब वो बात पुरानी हो चुकी है कि जवान लड़कियों के साथ रेप होते थे, अब तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी रेप हो रहे हैं। पहले भी हुआ करते थे, लेकिन ये और बात है कि मीडिया अब हाईलाइट करना शुरू किया है। इनके पीछे इनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन कहने की बात यह है कि रेप केसेस भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वजह क्या है? हमारे वहां कहीं पे भी दहशतगर्दी हमला होता है, हमारी आईबी, हमारी रॉ क्या कोशिश करती है, मास्टरमाइंड को निकाला जाए। कौन था इसका पीछे मास्टरमाइंड, कहां से इसने ट्रेनिंग ली थी, कहां से वो हथियार लाए थे, कहां से वो बारूद लाए थे। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ताकि हम जड़ तक पहुंच सकें। मैं कहता हूं और ये बात सभी लोग समझते हैं कि जब कभी कोई रेप केस होता है, रेप की समस्या हमारे सामने आती है, तो हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट उसके मास्टरमाइंड को क्यों नहीं ढूंढती, कहां से उसने ट्रेनिंग हासिल की, वो कौन से एलिमेंट थे जो इसमें इन्फ्लुएंस करे जिसके जरिए वो रेपिस्ट बना, क्यों नहीं करती। मैं बताता हूं मास्टरमाइंड कौन था। मास्टरमाइंड कोई नहीं, यही बॉलीवुड, यही हॉलीवुड, यही लॉलीवुड, ये बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा जहां पर दिखाई जा रही है, ये चीजें मास्टरमाइंड है। दिल्ली गैंगरेप के बाद काफी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार ने ये कहा कि वी कंडेम, हम कंडेम करते हैं कि ऐसा रेप केस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हजरत आप जरा ये तो बताइए, आपने तो मूवी के अंदर एक्टिंग करके दिखाया था कि रेप किस तरह करते हैं, बच्चों ने प्रैक्टिकल कर लिया, तो मास्टरमाइंड कौन हुआ? आप बताइए मास्टरमाइंड कौन हुआ? बिल्कुल सही बात है, ये हल है। और क्या हमारी गवर्नमेंट नहीं देख रही इस बात को? मैं और आप इस बात को नहीं देख रहे? बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री चल रही है बॉलीवुड, किसी के अंदर मजाल है कि इनके खिलाफ खड़े होकर बोल दे, और हम जैसे दाढ़ी टोपी वाले लोग अगर ऐसी बात कहते तो क्या कहा जाता है? आतंकवाद तो बात दूसरी, वो अलग कॉन्टेक्स्ट से कहा यह जाता है तुम नैरो थिंकिंग के लोग हो, तुम्हारी सोच बहुत पुरानी है। हमें फख्र है कि हम पुरानी सोच वाले लोग हैं जहां पर औरतों की इज्जत महफूज है। तुम्ही को मुबारक हो ऐसा बकवास सिस्टम जहां पे औरतों की इज्जत ही महफूज नहीं है। तो ये हकीकत है, सबको ही जानते हैं। मैं आपको एक लतीफा बताऊं, मैं न्यूज रिपोर्ट देख रहा हूं एक न्यूज चैनल पर, जहां पे दिखाया जा रहा है कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, आज यहां मुजाहरे हो रहे हैं, आज वहां मुजाहरे हो रहे हैं, और हमारे देश के क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपना मैन ऑफ द मैच उस विक्टिम के नाम कर दिया है और अपना पूरा मैन ऑफ द मैच की रकम उसे दे दी है ताकि उसका इलाज हो। ठीक है, ये रिपोर्ट को देखने के बाद थोड़ी देर का ब्रेक आता है न्यूज चैनल में, और हम क्या देखते हैं, हमारे ही देश के दूसरे क्रिकेटर जो उनके ही टीम मेंबर है विराट कोहली साहब, वो क्या कहते हैं, मुझे लड़कियां पटाने के 2-3 तरीके आते हैं।
मोबाइल फोन के अंदर वो फोटो किस तरह लड़कियों के लिए तो वो दिखाते हैं। मुझे आप बताइए कौन सी मुनाफिकत हम कर रहे हैं? एक तरफ एक क्रिकेटर अपनी पूरी जीती हुई रकम रेप जिसके साथ जो हुआ, जो विक्टिम थे उसके नाम कर देते हैं, उसी के अंदर लड़कियां किस तरह छेड़ना दूसरा क्रिकेटर हमें सिखा रहा है। और बात बिल्कुल ये हकीकत है। आप कहेंगे ये सिर्फ एक्टिंग है, एक्टिंग देखी जाती है, बच्चे प्रैक्टिकल कर देते हैं। क्या ये हमारे सामने नहीं है? हम हल ढूंढ रहे हैं कि इन समस्याओं का हल क्या है। सामने ही हम कोई चीज ढूंढने के लिए पूरा गांव ढूंढ डालते हैं, सामने ही हल होता है। इस्लाम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32 के अंदर कि जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब भी मत जाओ। और जिना के करीब, जिना की शुरुआत ही वहां से हो जाती है कि जब दो नामहरम लोग जिनसे उनका कोई भी रिश्ता नहीं, वो लोग बातचीत शुरू करते हैं। आज अगर, और कुछ सालों पहले मैंने देखा था मीडिया ने बड़ा हल्ला मचाया था कि एक फतवा ऐसा निकला है कि जहां पे ये कहा गया है कि औरत मर्द साथ में जॉब नहीं कर सकते। फतवा देने की स्टाइल होती है मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉर के अंदर, हमें ये बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत शोषा छोड़ा कि इस्लाम ऐसा कहता है कि औरतों को जॉब नहीं करना चाहिए, हाँ हूं करके बहुत चिल्लाया। आप मुझे बताइए, जब दो नामहरम एक जगह पे जॉब करते हैं, उसका हल क्या, उसका रिजल्ट क्या होता है? क्या मैं और आप न्यूज रिपोर्ट नहीं पढ़ते कि रात के अंदर एक लड़की जॉब कर रही थी कॉल सेंटर के अंदर, वो निकलकर अपने घर की ओर जा रही थी या कहीं और जा रही थी, फिर उसका उसी केक को जॉब करने वाले ने उसके साथ रेप किया। आप मुझे बताइए, ये सारी जिना की शुरुआत ही नामहरम की दोस्ती से शुरू हो जाती है। और इस्लाम ने ऐसे स्टार्टिंग हुए फितने को ही रोका है। यू डोंट नीड टू टॉक विद अननेसेसरी, आपको फालतू में नामहरम से बात ही नहीं करनी है। आज अगर ऐसे स्टेटमेंट हम मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में दे देते हैं तो लोग हमें कहते हैं आपकी जहनियत आज के दौर में काम नहीं आने वाली। लेकिन हकीकत में आप देखेंगे तो उसका रूट कोज, सारे फितने का रूट कोज, दो महरम जब कांटेक्ट में आते हैं बातचीत के लिए, चाहे फिर वो इंटरनेट के जरिए हो, टेलीफोन के जरिए हो, SMS के जरिए हो, कैसे भी हो, तो इस्लाम ने इस फितने को भी रोका है। अच्छा, जब इतना हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? जितने भी पब्लिकली जितने भी गंदे सीन्स दिखाए जाते हैं, और मेरे पास यूके न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जहां पे ये दो रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद है, मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा, वहां पे पूरी तरह से इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, वेस्टर्न मीडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। ये रिपोर्ट मेरे पास है टेलीग्राफ की, एक न्यूज़पेपर है और अमेरिका में और यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। ये दोनों रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया गया है कि छोटे छोटे 10 साल के बच्चे वो भी रेप करते हैं बच्चियों का, ऐसी रिपोर्ट्स पाई जाती है। और इसके अंदर इनके थिंकर, इनके फिलोसोफर, मेरी बात नहीं कह रहा हूं, इस्लाम की बात नहीं कह रहा हूं, इनके खुद के रिसर्चर, ये सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये सारे केसेस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारे वहां ओपन पोर्नोग्राफी है, इजीली कोई भी उसको देख सकता है। और इसी रिपोर्ट के आखिर में बताया गया है कि यूके की पुलिस जब कभी भी किसी भी टीनेजर्स को, जिसे जुवेनाइल कहा जाता है, अगर पकड़ती है रेप केस के अंदर, तो उसके मोबाइल फोन में 100% जो लोग पकड़े गए उनके अंदर 100% लोगों के मोबाइल फोन के अंदर पोर्नोग्राफिक मूवीज थी। मुझे आप बताइए, कौन शख्स ये चाहेगा कि उसका बच्चा रेपिस्ट बने? कौन शख्स ये चाहेगा कि उसकी बच्ची रेप का शिकार हो? आज जमहूरियत का बहुत बड़ा बोलबाला माना जाता है। जमहूरियत के अंदर क्या माना जाता है कि जो अक्सरियत मानेगी, वो कौन सी अक्सरियत इस बात को मानती है कि उसका बच्चा रेपिस्ट बने? कौन सी अक्सरियत इस बात को मानती है कि उसकी बच्ची रेप का शिकार हो? ये जमहूरियत का एक ठोसा हमें दिखाया जाता है और हकीकत में चंद लोग अपने मफाद के लिए पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। तो ये हकीकत है। इस्लाम ने फिर ओपन जितनी भी पोर्नोग्राफी है, ये सारी चीजों को बैन किया है। फिर तीसरा स्टेप, अगर ये दो चीजें आप करते हैं, पहली बात, नामहरम से अननेसेसरी आपको बात नहीं करनी है। उसके बाद जो भी इफेक्टिव एलिमेंट्स हैं जो उसे इंस्पायर करते हैं रेप करने के लिए, वो सारी चीजों को बैन किया जाए। उसके बाद फिर भी कोई शैतान ऐसी हरकत करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है।
آپ کو پنشمنٹ، آج اگر پنشمنٹ کی بات کر دی جائے تو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بڑا نعرہ مارنا شروع کرتے ہیں کہ غلط ہے یہ، غلط ہے یہ. وہ سارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، سیریا کے اندر، لیبیا کے اندر، فلسطین کے اندر، لیبنان کے اندر خاموش ہیں مسلمانوں کے خون کے اوپر. لیکن یہ سارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جب ریپسٹ کو سزا دی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. تو پھر یہ پنشمنٹ ہے. اگر آپ سوسائٹی کے اندر یہ 2 رول، یہ 3 سٹیپس امپلیمنٹ کریں گے تو سوسائٹی کے اندر کبھی بھی ایک بھی ریپ کیس نہیں آئے گا. لیکن یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. آپ امپلیمنٹ تو کریں، آپ یہ سٹیپس تو فالو کریں. اور کون نہیں چاہتا یہ ہو، لیکن نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ چند مفاد پرست لوگ ہیں. اور اس کی وجہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ہے. آج ہمارا ایجوکیشن سسٹم بچوں کو یہ تو سکھا دیتا ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، لیکن آج کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ نہیں سکھاتا کہ بیٹا 2 + 2 4 ہی ہوتا ہے. مطلب کہ کوئی شخص نے آپ کو 2 روپے دیے ہیں اور پھر 2 روپے دیے ہیں تو وہ اس کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہ کیا جائے اور اس سے 4 روپے پورے لوٹائے جائیں. آج بڑے بڑے کوبھانڈ جو ہوتے ہیں، اتنے بڑے کرپشن کے اندر ان پڑھ لوگ نہیں پائے جاتے، اس میں پڑھے لکھے لوگ پائے جانے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر سے اللہ کا تصور، اسلامی تعلیمات، خدا کا خوف، یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے بہت بڑے ڈاکٹر، انجینئر، سارے لوگ تو بن جاتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ سے کس طرح بات کرنا، اپنے بھائی بہن سے کس طرح بات کرنا، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر کس طرح پیش آنا، تمیز نہیں ہوتی بات کرنے کی. اور یہ تمیزیں آپ کو سیکھنے کو کہاں سے ملیں گی؟ جب آپ اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں گے، جب اسلامی تعلیمات انہیں دی جائیں گی. اگر دی ہی نہیں جا رہی ہے تو بالکل یہ سوسائٹی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہونا ہی ہے. اور اس سے خطرناک سچویشن بھی آئے گی اگر ہم نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو نہیں سدھارا. آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ بچوں کو چوری کر کے کس طرح بچنا یہ سکھاتے ہیں. کس طرح؟ کونڈوم استعمال کیجئے، جلدی شادی نہ کیجئے، بچے زیادہ پیدا ہوں گے، تکلیف ہوگی. اچھا آپ کو کرنا ہی ہے نا، تو آپ کونڈوم استعمال کیجئے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ بھی بچ جائیں گے، اور وہ جو اننیسیسری پریگننسی ہے وہ بھی بچ جائے گی. یہ ہم سکھاتے ہیں ہمارے بچوں کو. میں کہتا ہوں کہ جو شخص اس بات کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کیا تو یہ عمل اپنی بہن کے لیے قبول کرے گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا. پھر بھی ایسی تعلیمات کو ہمارے سلیبس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس بات پہ میرے کو اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آج کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم، جو آپ بچوں کو یہ مت سکھائیے کہ چوری کر کے اندر آپ چھپکے سے اگر کریں گے تو بچ جائیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا، آپ کونڈوم کا استعمال کریں گے. بچوں کو آپ یہ سکھائیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، گورنمنٹ، سرکار، پولیس دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے یا دیکھے، ایشور بنانے والا اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر تم نے شادی سے پہلے ایسی حرکت کی تو یہ بہت بڑا جرم ہے. بچوں کے اندر اگر آپ یہ تعلیمات دیں گے تو مجال ہے وہ ریپ کرے، پھر مجال ہے شادی سے پہلے یہ کام کرے. وہ یہ تعلیمات ہم نہیں دیتے. اس کی وجہ سے یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سارے چیلنجز کو دیکھا اور انہیں فیس کیا، اور پوری دنیا نے اس بات کو دیکھا کہ ایک عرب کے اندر ایک عظیم انقلاب آ گیا. اور وہ انقلاب ایسا کہ وہ سوسائٹی، فیض سید صاحب نے بھی اس کا اگزامپل دیا کہ وہ سوسائٹی جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آج ہماری سوسائٹی کے اندر بھی یہ سمسیا ہے. لیکن سورہ تکویر، سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 جب آئی کہ اور اس دن زندہ درگور کر جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم کے اندر زندہ دبائی گئی. یہ آیت کا نازل ہونا تھا کہ وہ عرب کے لوگ، جو لوگ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہ حرکتیں چھوڑ دی. شراب کا مسئلہ ہے، میرے گجرات کے اندر تو شراب بینڈ ہے، لیکن وہ بینڈ آن پیپر ہے. کئی لوگ، میں پونے جب پڑھا کرتا تھا میرے کلاس میٹ مجھے کہا کرتے تھے تو مہاراشٹر میں بہت سوال کرتا ہے کہ گجرات میں بینڈ ہے، لیکن تجھے معلوم ہے کہ جتنی شراب گجرات میں پی جاتی اتنی کہیں نہیں پی جاتی. یہ ایک چٹکلا تھا. کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج میرے اور کون سا شخص، کون سی فیملی اس بات کو مانے گی کہ اس کا شوہر یا اس کی بیوی اس امراض میں مرے جو دارو پینے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ دارو کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں، سارے لوگوں کے سامنے ہے. لیکن آج بھی لائسنس کے ذریعے شراب کو بیچا جا رہا ہے.
یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. شراب کے فائدے کتنے, نقصان کتنے, سب کو پتا ہے, پھر بھی میں اور آپ خاموش ہیں. میجورٹی ہماری یہ چاہتی ہے کہ ہمارا خاندان نہ بگڑے. میجورٹی ہماری یہ چاہتی ہے کہ ایسے لوگ نہ مارے جائیں جن کا لیور سڑ جاتا ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, ایسی چیزیں نہ ہوں. لیکن پھر بھی یہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے اور اپنے آپ سے ہی جواب حاصل کیجئے اور ان چیزوں کو بدلنے کی کوشش کیجئے. عرب کے اندر بھی شراب پی جاتی تھی. قرآن نے 3 اسٹیپ کے اندر اسے حرام قرار دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 آئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 آئی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بچ جاؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 219 آئی کہ شراب کے اندر فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. اور آخری آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کہ آج کے دن سے شراب حرام ہے تمہارے لیے. وہ عرب کے لوگ جہاں پر یہ بات مانی جاتی تھی کہ جس کے پاس سب سے پرانی شراب ہے اس کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی, حال یہ ہو گیا کہ وہ تمام لوگوں نے اپنے شراب کے گڑھے توڑ دیے. آپ مجھے بتائیے, یہ سوسائٹی, اس سوسائٹی کے اندر آروپی خود, مجرم خود کورٹ کے اندر آ کر اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے بغیر کوئی لائر کے, بغیر کسی کے کہے پر وہ آ کے اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے. اور فیض سید صاحب نے وہ واقعہ آپ کو بتایا کہ وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سے یہ گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اب اسے سنسار کیا جائے گا, تو اللہ کے رسول اسے واپس بھیج دیں. مطلب کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیے مجھے وہ کون سی سوسائٹی ہے, وہ مجرم جسے پتا ہے کہ اس کو یہ سزا ملنے والی ہے کہ اس کو سزائے موت ہوگی, پھر بھی وہ عدالت کے اندر آتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ کوئی چمتکار نہیں تھا. حقیقت میں, یہ آخری پوائنٹ میں ہوں میں اپنے, کہ حقیقت میں یہ سب کیوں ہوا. اس کے لیے 3 فیکٹرز ہیں. پہلا, انسانوں نے وہاں کے اپنے رب کو پہچانا کہ یہ زندگی جو مجھے ملی ہے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ملی ہے اور میرا کوئی بنانے والا ہے, اور میرا بنانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیمات دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 کے اندر, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے تمہیں موت دی اور زندگی دی تمہیں آزمانے کے لیے, تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ زندگی ایک امتحان ہے. یہ پہلا فیکٹر تھا. اور وہ لوگوں نے اپنے رب کو پہچانا اور وہ لوگ یہ جانتے تھے اور انہیں یہ تعلیمات دی گئی تھی کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے, ہمارا وہ مالک ہے, اور ہم یہاں پہ تو ہیں لیکن میرا بنانے والا جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. دوسرا فیکٹر تھا, اور ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے آپ کو پورا تعارف دیا ہے اس کا, کہ رسالت کا, کہ انہوں نے مانا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈنس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, ان کو فالو کیا. تیسرا فیکٹر تھا جو سب سے زیادہ موٹیویشنل تھا, وہ یہ تھا کہ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. میں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہاں پہ ہوں, میں مروں گا تو میں نے جو جو کرم کیے ہیں, جتنے بھی کام میں نے کیے ہیں, یہ سارے کام کا مجھے حساب دینا ہوگا اوپر. آپ مجھے بتائیے, بغیر اس کنسپٹ کے چوری کرنا, ریپ کرنا گناہ ہے, آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے جو لوگ قانون کو اپنے پیسوں کے اوپر رکھتے ہیں. کوئی بہت بڑا انسان ہے, قانون کو پیسے سے خریدتا ہے, آپ اسے ثابت کر کے دکھا دیں کہ چوری کرنا غلط ہے. کس طرح غلط ہے بھائی؟ میں چوری کر رہا ہوں, میں کما رہا ہوں, پولیس آپ کو مارے گی, پولیس کو میں پیسے پہ رکھتا ہوں اپنے. ایسے انسان کے سامنے چوری کرنا غلط, یہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے بغیر اس بات کے کہ وہ اگر اس کو پتا ہو کہ میرا کوئی بنانے والا ہے, میں ایک دن مرنے والا ہوں اور میرے کیے ہوئے کرم کا مجھے حساب دینا ہے. یہی کنسپٹ کے ذریعے آپ پوری دنیا کے اندر شانتی لا سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اپنے بات کو یہیں پہ ختم کروں گا. قرآن کی اسی آیت سے جس بات سے میں نے شروعات کی تھی, اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے اندر, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک قبول کے لائق کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آج کے یگ میں انوکول ہی نہیں, اسلام آج کے یگ میں انوکول ہی نہیں, حقیقت میں انسانیت کے لیے پوری سمسیاؤں کا حل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خیراً جزاک.
ये थे जनाब मोइनुद्दीन नसरुल्लाह साहब, नहायत ही पुरमग़ज़ और पुरज़ोर तरीके से दलाइल के साथ में मीडिया के बारे में और एक नहीं बल्कि कई सामाजिक बुराइयों के बारे में हमारा ध्यान उधर आकर्षित करा रहे थे और मीडिया को भी उनकी जिम्मेदारी अपने अंदाज में समझाने की कोशिश की और हम सबको भी जगाने की कोशिश की कि हम भी आज इस परिवेश में जिसमें जी रहे हैं, रह रहे हैं और जिसमें आए दिन कहीं गैंग रेप, कहीं नंगापन, कहीं डकैती, कहीं भुखमरी, कहीं गरीबी और इसके ताल्लुक से कितने ही किस्म के अपराध रोजाना अखबारात में, टीवी में देखते पढ़ते रहते हैं। इससे अगर बचना है तो हमारी जो सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है, आज भी आप गांव देहात में जाइए तो आप देखेंगे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके घरों में आज भी हमारी जो माँ बहनें वहां रहती हैं, बहुएं रहती हैं, वो किसी धर्म के हो, मुस्लिम हो, हिंदू, कोई भी, गांव के अंदर आज भी जाइए संस्कार आपको मिलेंगे कि लंबा घूंघट काट के तो अपने ससुर के सामने या जेठ के सामने जाती है। जितना लंबा घूंघट उतने ही कुलीन घराने की समझी जाती है। लेकिन शहर की सभ्यता क्या हो गई, जितना ही नंगापन उतनी ही स्मार्ट, उतनी ही एडवांस समझी जा रही। और अभी जब दिल्ली गैंगरेप हुआ उसके बाद जो एहतजाज, धरना प्रदर्शन हुए तो उसमें जो हमारे मुल्क की बेटियां जब एहतजाज के लिए निकली तो एक दो स्लोगन उन्होंने अपने तख्तियों पर लिख कर जो रखा हुआ था कि मेरे स्कर्ट से ऊंची मेरी आवाज है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये स्लोगन लिख करके तुम कहना क्या चाहती हो मेरी बहन? तुम कुछ भी पहनो, कैसे भी पहनो, तुम्हारा शरीर है, हक है तुम्हें, लेकिन कभी ये तो सोचो कि अगर इसका कोई असर हमारे समाज में, हमारे माशरे में, अगर हमारी इस कपड़े की, हमारे इस पहनावे की वजह से अगर एक हमारा भाई अगर बिगड़ रहा है, हमारे समाज में अगर इसका कोई गलत असर जा रहा है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बहरहाल बड़े ही अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी बातों को दलाइल के साथ और नेट के जरिए कुछ प्रिंट आउट निकाल करके सबूत के तौर पर रखा है। मैं इनका मशकूर हूं। और अब कोई सवालात अगर आप लोगों के हों तो आप लोग माइक पर आएं और सवाल कर लें, फिर सवाल के बाद आपका गिफ्ट तकसीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। सलील साहब, हाँ माइक चालू कर दो भाई। सबसे पहले मैं इस आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और बहुत विस्तार से ये अपने आप में मिर्जापुर जैसे जिले में नए ढंग का प्रयोग जो कई सालों से चल रहा है वो काबिल तारीफ है। मैं अपने सवालात 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। एक चलता हूं 6वीं शताब्दी 531 571 हजरत साहब के पैदाइश के समय का। ये जानकारी हमको पिछले साल जो खुर्शीद भाई ने हिंदी में कुरान की पुस्तकें दी उसके थोड़े बहुत पढ़ने से जो जानकारी है। और दूसरा चलता हूं मध्यकाल का जो मुगल बादशाहों का कार्यकाल था उस पे आता हूं। और तीसरा मैं 21वीं शताब्दी जिस पे अभी गुजरात से आए महोदय ने अच्छे ढंग से बात की। तो सबसे पहले जब मैं वहां चलता हूं तो 571 पे उनके जन्म के बाद तो एकेश्वरवाद पे हिंदू धर्म वह 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करता है और बड़ा ही